हेलो गाइस, मैं मनोज कुमार डिजिटल स्कूल कैंपस पे आपके लिए 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और बेटा उसके लिए हम आज टॉपिक लेकर के चलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हो। सॉल्यूशन द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मेड बाय टू कंपोनेंट or three component. If the two component present in the solution, that solution is called binary solution. When the three component present in the solution, that solution is called ternary solution. So first of all we discuss solution. Solution, a homogeneous mixture of two or more than two substances. Mainly two parts are present in the solution. One is solute, another is solvent. Solute, the substance present in small amount. Substance present in small amount is called solute, and the substance present in large amount and have same phase to the solution is called solvent. We consider an example: aqueous solution of sugar means sweet water. In this case, solute and solvent. Solute is sugar and solvent is water. So we can say that dissolved phase, यानी कि जो घुल जाता है, dissolved phase of the solution is called solute and dissolving phase of the solution is called solvent. These are basic terms related to solution. Now next example: aqueous solution of NaCl, यानी नमक का जली विलयन. We take 1 glass of water and some amount of common salt dissolved into the water, then we get aqueous solution of NaCl. In this case, solute NaCl and solvent water. Next example: aqueous solution of alcohol. Alcohol का aqueous solution. In this case, solute is alcohol and solvent is water. When the amount of water is greater than that of alcohol, then these terms are interchanged. Alcohol will be solvent and water will be solute. But mostly in cases, alcohol is solute and water is solvent. So next topic, we start the types of solution. सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन बेटा 2 बेसिस पे किया गया है. फर्स्ट बेस है classification of
सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पर किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ amount of solute, second on the basis of physical states of solute and solvent, solute and solvent। एक क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, विलेय की अमाउंट के आधार पे, और दूसरा किया गया है विलायक यानी कि सॉल्वेंट की अमाउंट के बेसिस पर। फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे, तो इसके बेस पर जो सॉल्यूशंस होते हैं वो मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकंड, कंसंट्रेट या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। थर्ड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फोर्थ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिफ्थ, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दीज आर कंपैरेटिव वर्ड्स। डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो ये क्या होता है, जब हमारे पास में कोई भी सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट की कंपैरिजन में कम होता है तो उसे बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन in which solute is present in a small amount comparative to solvent, that solution is called dilute solution. When the solute present in large amount, that solution is called concentrate solution. So dilute and concentrate both are comparative word. When solute is in a small amount, that solution is called dilute, and the solute present in large amount, that solution is called concentrate solution. We consider an example. When we take 250 ml of water and dissolve 1 spoon of sugar, that solution is called dilute solution. And when we take 250 ml of water and dissolve 100 grams or 200 grams of sugar, then that solution we call concentrated solution. Saturated solution. Saturated, the solution in which extra amount of solute we cannot add, that solution is called saturated solution. Means ऐसा solution जिसमें हम solute की amount पहले जो प्रेजेंट है उससे ज्यादा न डिसॉल्व कर सकें उसे बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसके लिए, द solution in which maximum amount of solute is present, that solution is called saturated solution. For example, we consider saturated solution of sodium bicarbonate and we use in laboratory. जब हम किसी का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं तो हम सॉल्वेंट लें और उसमें सॉल्यूट के लिए डिसॉल्व किया, फिर डिसॉल्व किया और उसके बाद ही कंटिन्यू करते गए, तब तक डिसॉल्व करते जाएं जब तक कि वो डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए, यानी डिसॉल्व होना रुक जाए। तो उस टाइम पे जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में उससे ज्यादा नहीं डिसॉल्व हो सकता। अनसैचुरेटेड का मीनिंग है कि जिसमें एक्स्ट्रा हम ऐड कर सकते हैं। मीन्स हमने 1 गिलास वाटर लिया था और उसमें 1 स्पून हमने शुगर के लिए डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद सेकंड स्पून भी डिसॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब वो क्या था, पहले अनसैचुरेटेड था। इट मींस द सॉल्यूशन इन व्हिच वी कैन ऐड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड लास्ट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन व्हिच solute present in
more amount than saturated solution is called super saturated solution। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट सैचुरेटेड से भी ज्यादा हो उसे बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि अभी बोला था यहाँ पे मैक्सिमम तो यहीं पे होगा। तो बेटा इसके लिए ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए यदि हीट कर दिया जाए on heating saturated solution some amount of solvent evaporate then the solute present in large amount than the saturated that solution is called super saturated solution। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए हम हीट कर दें तो उसके बाद में जो सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होगा वो होगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये थे 5 क्लासिफिकेशन। इन 5 पॉइंट्स के लिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं। डाइल्यूट का मीनिंग जो सॉल्यूट है वो बहुत कम अमाउंट में होगा। कंसंट्रेट सॉल्यूट यहां ज्यादा अमाउंट में होगा। सैचुरेटेड मैक्सिमम अमाउंट में जब सॉल्यूट प्रेजेंट हो तो सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मैक्सिमम से कम हो तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड मैक्सिमम से भी ज्यादा हो यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तो उस टाइम पे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेते हैं ये दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इस बेस पर जो सॉल्यूशन है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक लिया सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड gaseous solutions। solid solutions ये क्या होते हैं, the solution in which solvent is solid, the solution in which solvent is solid, that solution is called solid solution। and when the solvent is liquid that solution is called liquid solution। and when the solvent is a gas then that solution is called gaseous solution। solute solvent, solute हमारा हो सकता है solid भी होगा, liquid भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, बट सॉल्वेंट हमारा सॉलिड ही हो Three cases are possible in this case। in 3 the cases solvent is in solid state, so these solutions are called solid solutions। लिक्विड के केस में सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। और रोक रहा हूँ, कुत्तों की आवाज बड़ा परेशान कर देती है। अरे बेटा सेकंड क्लासिफिकेशन में आपके लिए बताया सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होगा वो सॉलिड होगा, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा, और गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होगा वो गैस होगा। मीनिंग जो सॉल्यूट होगा वो तो तीनों फेज में हो सकता है, लेकिन जो सॉल्वेंट होगा वो वही फेज होगी जो सॉलिड सॉल्यूशन का नेम होगा। जैसे सॉलिड सॉल्यूशन लिया तो उसमें तीनों केसेस में आपने देखा बेटा कि जो सॉल्वेंट है वो कैसा है, सॉलिड। एग्जांपल लेते हैं 1 बाय 1 हम। जैसे ये लिया सॉलिड तो सॉल्यूट हो और जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड हो, उसमें एलॉयज आते हैं। जैसे ब्रास है वो कॉपर और जिंक से बना होता है, तो कॉपर और जिंक दोनों ही क्या होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं। लिक्विड और सॉलिड यानी हम मरकरी का सोडियम अमलगम ले लें तो उसमें ये जो है वो सॉलिड है और ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसका जो मिक्सचर ले लेंगे हम। थर्ड एग्जांपल लिया सॉल्यूट गैस होना चाहिए, H2 एडसॉर्ब्ड एट पीडी सरफेस, यानी प्लेटियम की सरफेस पर हाइड्रोजन को एडसॉर्ब करा दिया जाए तो वहां पर गैस डिसॉल्व हो जाती है सॉलिड में।
एक एग्जांपल लिया लिक्विड सॉल्यूशन में, पहला सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो तो आपने एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर पढ़ा है, आपने पढ़ा है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल्स। लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व हो उसका आपने पढ़ा है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल। गैस डिसॉल्व हो लिक्विड में सोडा वाटर का एग्जांपल आपने पढ़ा है। सॉलिड डिसॉल्व हो आपका गैस में, इसका एग्जांपल है बेटा स्मोक। स्मोक कहीं से भी जब उठता है तो उसमें कार्बन पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते, जबकि वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। लिक्विड गैस में डिसॉल्व होना चाहिए। कोहरा आपने देखा है, उसमें क्या है, वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर डिसॉल्व इन द गैस बट डिसअपीयर, जब वो मतलब हमारे पलकों पे यहाँ पे गिरता है तब हमें दिखाई देता है। गैस गैस में हो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा एयर, तो इसमें क्या है, गैस गैस में डिसॉल्व है। ये दो क्लासिफिकेशन आपके लिए बताए थे, ये बड़ा ही बेसिक टर्म्स थे। इसके बाद में जो बेटा नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो है, जो मेन हुई है आपके एग्जाम के उससे भी, वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। कंसंट्रेशन के लिए आप बेटा स्टडी भी करके आए हो, 11th में फर्स्ट चैप्टर में था। कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का सॉल्यूशन के कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व्ड है, या सॉल्वेंट की कितनी अमाउंट में डिसॉल्व्ड है। इन टर्म्स का बेसिक मीनिंग आपके लिए पता होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत रहेगी आपके लिए। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका मीनिंग है amount of solute upon volume of solution, या और amount of solvent। The amount of solute present in definite volume of solution or the definite amount of solvent is called concentration of solution. Different method we use to describe the concentration of solution. So the methods in which percentage concentration, second is concentration in ppm, third gram per liter concentration, fourth molarity, fifth normality, sixth molarity, seventh formality, eighth mole fraction। These 8 methods we use to describe the concentration of solution. So we study one by one method to describe the concentration of solution. So first is percentage concentration। नेम से ही आप 6, 7, 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हो परसेंटेज, यानी कि यहाँ पे हम सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है बेटा उसे परसेंटेज में एक्सप्लेन करेंगे। परसेंटेज का मीनिंग होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में कितने पार्ट्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज कंसंट्रेशन। सो परसेंटेज कंसंट्रेशन इज ऑफ 3 टाइप। percentage concentration divided in 3 parts। percentage concentration weight by weight, percentage concentration volume by volume, percentage concentration weight by volume।
परसेंटेज कंसंट्रेशन 3 टाइप की होती है, जो कि आपके लिए बताया। फर्स्ट वेट बाई वेट, यानी यहाँ पे सॉल्यूट भी वेट यानी ग्राम में होगा और सॉल्यूशन का अमाउंट भी किस में होगा, ग्राम में होगा। यहाँ पे होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन in gram into 100, volume of solution, solute आएगा, volume of solute in ml, इधर वॉल्यूम दिया है तो यहां पर वॉल्यूम आएगा दोनों केसेस में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in ml into 100। इधर वेट दिया है और वॉल्यूम दिया है। बेटा इसी से हमें ये पता रहता है, इधर जो रहेगा वो रहेगा, ऊपर वेट आएगा, नीचे वॉल्यूम आएगा। इसका मीनिंग मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट से नीचे वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in ml into 100. These are the formula. In this case, mass of solution जो रहेगा वो रहेगा बेटा mass of solvent प्लस, पहले सॉल्यूट ले लेते हैं, सॉल्यूट और रहेगा mass of solvent। मींस जो सॉल्यूशन का मास होगा वो मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के सम के इक्वल होगा। इधर जो इसमें रहेगा वो रहेगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यहां जो सम होगा सॉल्यूट का और सॉल्वेंट के वॉल्यूम का वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल होगा। बट इन थर्ड केस ए बी सी, बट इन दिस केस एग्जाम्पल तीनों कंसंट्रेशन का बेटा इधर ले लेते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट कंसंट्रेशन का एग्जाम्पल हमने लिया, इसका मीनिंग है हमने लिया इसका एग्जाम्पल 5% वेट aqueous solution of H2SO4। इसका बेटा जो मीनिंग है, ये परसेंटेज है, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के लिए बताता है। तो इसका मीनिंग है कि सॉल्यूशन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का 100 ग्राम लेंगे तो जो ये परसेंटेज है वो रहता है सॉल्यूट, मींस 5 ग्राम H2SO4 एंड रिमेनिंग 95 ग्राम ऑफ वाटर, ये सॉल्वेंट रहेगा। जो परसेंटेज लिखा होता है वो क्या होगा, सॉल्यूट, बाकी 100 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचेगा वो क्या रहेगा, सॉल्वेंट। इन सेकंड केस 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के 100 ml, दोनों में सेम कैटेगरी है, इधर भी सेम कैटेगरी था, इधर भी सेम है, तो इधर होगा, ये 10% है तो 10 ml ऑफ एल्कोहल यानी सॉल्यूट आएगा, जो परसेंटेज होगा वो सॉल्यूट होगा, रिमेनिंग 90 ml ऑफ वाटर। बट इन थर्ड केस this is different. We take example 15% weight by volume
aqueous solution of glucose, ग्लूकोज का 15% सॉल्यूशन लिया है, बट वेट बाई वॉल्यूम, यहां पर एक वेट में है और एक किसमें है, वॉल्यूम में है। इस केस में क्या होगा बेटा, इधर हम लेंगे 100 ml, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए ml में लेंगे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इधर लिया 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसमें जो परसेंटेज है वो सॉलिड होगा, यानी कि 15, और सॉलिड किसमें है, इसमें ग्राम में, 15 ग्राम होगा इधर, 15 ग्राम ग्लूकोज। एंड अब आप कहेंगे कि 85, इधर 85 नहीं होगा, क्योंकि यहां पे बेटा ये सिमिलर नहीं है, ये डिफरेंट है, तो इधर 100 ही रहेगा, 100 ml ऑफ वाटर। यहीं पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक होती है वो यही होती है, क्योंकि यहाँ सिमिलर नहीं है। जब आप हाफ गिलास ऑफ वाटर लेंगे, उसमें 1 स्पून शुगर के लिए डिसॉल्व करेंगे, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, इसका मीनिंग यहाँ पर 100 ml ऑफ वाटर ही रहेगा। दीज आर द एग्जाम्पल। जब वेट बाई वेट हो बेटा, तो वहां पर भी क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे सॉल्वेंट की अमाउंट के लिए। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगा, तब भी आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब डिफरेंट आ जाएगा तो सॉल्वेंट में आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, जितना है परसेंटेज यानी 100 ही पूरा लेकर के चलना पड़ेगा। ये आपका परसेंटेज कंसंट्रेशन होगा, ठीक सर।